اور آج جو پشاور میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ASI اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ ہمارے فوجی جوان زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کے درجات بلند کرے اور زخمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ یہ لوگ قابل قدر ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، رینجرز ہیں، فوجی ہیں۔ تو ایک پاکستانی کے ناطے میں ان سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں جو دونوں واقعات ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو اور پاکستانی قوم کو خصوصاً کچھ حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں پچھلے 12 دنوں سے حکومت کی طرف سے، نیب کی طرف سے نہیں، حکومت کی طرف سے کچھ اٹھائے گئے سوال تھے۔ انہوں نے کہا جی 85 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی اور غبن ہوا، کک بیکس لیے گئے، کرپشن ہوئی اور اس پہ دھواں دار پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ میرا پہلا یہ سوال ہے کہ ان کو کون بتاتا ہے، فواد چودھری صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو، کہ ایسا معاملہ ہے؟ FBR بتاتا ہے، نیب بتاتی ہے، کون بتاتا ہے؟ اور پھر یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے۔ پھر جو مجھے اور میرے خاندان کو جو نوٹس آیا ہے کہ آپ کے سارے خاندان کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے، اس میں 85 ارب نہیں، اس میں 33 ارب کی رقم درج ہے۔ اب 85 ارب سے 33 ارب یعنی زمین آسمان کا فرق ہے، آدھے سے زیادہ فرق ہے۔ اب میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کس طرح میری بہنوں کے گھر پولیس نے دھاوا بولا اور نوٹس سرو ہوا۔ کیا عزت دار معاشرے میں نوٹس ایسے سرو ہوتے ہیں؟ بعد میں ڈاکیے کے ساتھ نوٹس سرو ہوا، پوری قوم نے وہ تماشا دیکھا۔ میں اپنے موقف کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو الزام حمزہ شہباز شریف پر لگا ہے، میں آج نیب کے ٹیم کے روبرو پیش ہوا تھا۔ اب قوم کو یہ ذرا غور سے سننا ہے کہ ایک طرف فواد چودھری اور شہزاد اکبر 85 ارب کی بات کرتے ہیں، انٹیریئر منسٹری کا جو لیٹر ہے ECL پہ ڈالنے کا وہ 33 ارب کی بات کرتا ہے۔ انٹیریئر منسٹری کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ 33 ارب کی بات کرے؟ ان کو تو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ جی آپ کا نام ECL پہ ڈال دیا ہے۔ اور آج قوم یہ بات جان لے کہ 85 ارب نہیں، 33 ارب نہیں، آج نیب مجھ سے صرف سوال کرتا ہے کہ 18 کروڑ کا معاملہ ہے۔ یہ باتیں آپ جان لیں، یہ باتیں جان لیں۔ اور یہ 18 کروڑ کب کا ہے؟ جو FTTs آئی ہیں، جو مجھے باہر سے پیسہ آیا ہے، یہ 2005 سے 2008 تک، یعنی 2005 اور 2008 تک یہ پیسہ مجھے آیا ہے۔ اس وقت حمزہ شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، مشرف کا دور تھا۔ 10 سال مشرف نے اپنی تقریر میں، جو پہلی تقریر قوم سے کی تھی، اس میں کہا کہ حمزہ شہباز کو ہم نے یہاں رکھا ہے، یعنی اغوا برائے تمام مجھے گروی رکھا ہوا تھا 10 سال کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ نہ میں پبلک آفس ہولڈر تھا، مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا، وہ میری راہ تکتے رہے، میں آپریشن تھیٹر میں ان کا ساتھ دینے کے لیے جا سکا کیونکہ مشرف کا دور تھا۔ مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے بتائیں کہ جب نہ میں پبلک آفس ہولڈر تھا تو کس بات کی کرپشن، کس بات کی منی لانڈرنگ؟ 18 کروڑ کا جواب میں انشاءاللہ تعالی یہ دیتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا اس وقت کے قانون کے مطابق کیا، اس وقت کے ٹیکس قوانین کے مطابق کیا، اور میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا۔ میں پاکستانی قوم کو دوبارہ گزارش کر دوں کہ اس وقت میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، مشرف کا دور تھا 10 سال کا،
ना मेरा भाई था, ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ थी, अकेला आदमी था। और नैब उस वक्त मुझे अपने दफ्तर में बुलाता था, 6-6 घंटे बिठाता था, मेरे साथ मेरे दफ्तर में घंटों बैठकर मेरी फाइलें खंगालता था। और यहाँ तक कि उस दौर में नैब ने मुझसे 12 करोड़ रुपया हथियाया इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कंपनी से 12 करोड़ रुपया नैब ने निकलवाया। और ये हकायक हैं कि जब डिक्टेटर का दौर खत्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो 12 करोड़ रुपया मुझसे नैब ने हथियाया था उसको वापस करना पड़ा कि नैब ने ये गलत काम किया। मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोज इल्जामात लगते हैं और मैं बड़ा गुनाहगार हूं मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन इस बात की गवाह देना कि अगर ये 18 करोड़ रुपया जो मुझ पे इल्जाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाजी खान तुम्हें कौन से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह ये कहते थे 56 कंपनियां, शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए खाए, साफ पानी में शहबाज शरीफ ने अरबों खाए, आशियाना में शहबाज शरीफ ने अरबों खाए। जब फैसला आया दूध का दूध पानी का पानी है, ना 1 इंच जमीन गई, ना 1 पैसा पाकिस्तानी खजाने से गया और पूरी कौम ने देखा कि सब झूठ था, फरेब था। मैंने आज पाकिस्तानी कौम के सामने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन मैं जवाब के साथ साथ पाकिस्तानी कौम के सामने कुछ चुपते हुए सवाल रख के जा रहा हूं जिनका जवाब ये पाकिस्तानी कौम मांगती है। एक शख्स जो खुद सरकारी हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे करता रहा और नैब के अंदर पेशी भुगती, उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर वो नैब चेयरमैन से मीटिंग करता है बतौर वजीर आजम। मुझे कोई कानूनदान ये समझाए कि जिस शख्स पे सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का सैर सपाटे के लिए इल्जाम है, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन से मुलाकात करता है। मुझे बताए पाकिस्तानी कौम पूछ के नियाजी खान से कि मेरी बीमार मां को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मुहासरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। और आज पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ, पेशियां भुगतता है शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। आज मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम पूछती है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये पेशावर बीआरटी को इंक्वायरी की जाए, बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो नियाजी खान की हुकूमत है वहां पर, उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि इसमें 7 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल है। कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता। ये मैंने जो नाम गिनाए हैं, नैब को ये शक्लें नजर आती हैं और बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो नैब को नजर नहीं आता। एक खातून जहां बाक हो गई, सिर्फ ट्रायल में 1 खरब से ज्यादा मंसूबा तजावुज कर चुका। 1 खरब में शहबाज शरीफ ने 3 मेट्रो बस बनाई, नियाजी खान की बीआरटी पेशावर की धक्के लगा लगा के 1 खरब से तजावुज कर गई। अभी तक कोई नहीं पता कि कब वो चलेगी। खड्डे हैं वहां पर, बारिश हुई, छतें बह गई। ये तमाशा पाकिस्तानी कौम देख रही। आज मैं गुजारिश करूं आपसे कि क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मौसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना। जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाअहल का और झूठा करार दिया,
वो कौम को इंसाफ का, कानून का, एहतसाब का भाषण दे रहा है और नियाजी खान साहब से बनी गाला में मीटिंग्स करता है। कौम पूछती है, नियाजी खान ये नया पाकिस्तान है तुम्हारा? गुजारिश ये है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि आज अभी 8 महीने में इस हुकूमत ने 3,300 अरब का कर्जा ले लिया और मैं कहता हूं इस वक्त मुझे नैब की पेशियों का खौफ नहीं है। जो आगे मुआशी कत्ल हो रहा है और होने वाला है उसका पाकिस्तानी कौम अंदाजा नहीं कर सकती। इनको मोटी अकल वालों को समझ नहीं आती, सुनामी की समझ आती है। अभी ये फिल्म शुरू हुई है। अभी जो महंगाई का सुनामी आम रेडी वाले को, मजदूर को घेरने वाला है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। असद उमर साहब फरमाते हैं कि अपना जो है वो IMF से बात हो गई है, महंगाई नहीं होगी। उसी के साथ ओगरा कहती है 80% बिजली और गैस महंगी होने वाली है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर हमजा शहबाज शरीफ की पेशियों से 22 करोड़ लोगों का पेट भर जाता है, हमारे मुआशी हालात बेहतर हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ को रोज बुलाएं। लेकिन ये एहतसाब नहीं है। जब नियाजी से उसकी अहलियत के बारे में पूछा जाता है, 8 महीने की मुआशी पॉलिसियों के बारे में पूछा जाता है, तो फिर आवाम की जो महंगाई से कमर टूट गई है उसका ध्यान बांटने के लिए हमजा शहबाज शरीफ को नैब बुलाता है। और फवाद चौधरी और शहजाद अकबर, जिनका कोई काम नहीं है, वो नैब की तर्जुमानी करके 85 अरब, 33 अरब और बात अब 18 करोड़ पे आ गई। कल अदालत लगेगी हाई कोर्ट के सामने। मैंने जो आपको पाकिस्तानी कौम को बयान दिया वहां भी बयान दूंगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम, मैं दोहराता हूं, अगर हमजा शहबाज अल्लाह का गुनाहगार आदमी है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, नियाजी खान की गीदर भभकियों से डरने वाला नहीं। अगर नियाजी करप्शन साबित ना कर सका, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना कर सका, तो पाकिस्तानी कौम नियाजी को कहना कि उसी कंटेनर पर चढ़कर, जिस कंटेनर पर चढ़कर पाकिस्तानी कौम को सब्ज बाग दिखाए थे, झूठ बोले थे कि मैं IMF का कर्जा लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, उसी कंटेनर पर चढ़कर हमजा शहबाज से माफी मांगना, इस कौम से माफी मांगना कि तुमने वक्त जाया किया है। 8 महीने कुछ नहीं किया, मईशत सिसकियां ले लेके, एड़ियां रगड़ करके मर रही है, पाकिस्तानी कौम मर रही है, पाकिस्तानी कौम गुर्बत की आग में जल रही है, नियाजी खान बुग़्ज़ और हसद की आग में जल रहा है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। अब पंजाब पे आ जाए, मुझे बताएं 8 महीनों में ये चौथा IG इन्होंने तब्दील किया है। IG ना हो गया चपरासी हो गया, कभी अपना सानिया साहिवाल हो जाता है, कभी सानिया पाकपतन हो जाता है, कभी वो इस्लामाबाद का IG जो है वो सवाती के कहने पर चेंज कर दिया जाता है, फिर हाई कोर्ट में माफी तलाफी होती है। ऐसे चलेगा? और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेट्रो पेशावर की बात तो मैंने बता दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये ऑरेंज लाइन ना चली तो मैं नैब को कहेंगे हम कि इसकी इंक्वायरी करे। ये हाल है, इनसे बने बनाए मंसूबा भी नहीं चलते। ये पाकिस्तान की तरक्की क्या करेगा? 300 अरब पाकिस्तान से इसने बाहर से लाने थे, उसका क्या बना? और मुशर्रफ दौर में नियाजी खान, आप उसके पैरों में बैठते थे, उसके रेफरेंडम के लिए वोट मांगते थे। आप मोहसिन कुश इंसान हैं, आप सर से पैर तक बुग़्ज़ और हसद में भरे हुए हैं। खुदारा हमजा शहबाज से बुग़्ज़ और हसद का बदला ले लो। लेकिन आज 400% दवाइयां महंगी हो गई, लोग अपने बच्चों को लेके बिलक रहे हैं, उनका भूख, उनकी प्यास है, बूढ़ी माँ को दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस आवाम से बदला ना लो। आप कहते थे मैं शरीफ खानदान को रुलाऊंगा, अल्लाह ताला साथ हो तो नियाजी खान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से इस गरीब लोगों को मत रुलाओ। अगर इनको गुस्सा आ गया ना, ये तुम्हें इतना रुलाएंगे कि तुम्हें पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं
पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि अभी रियासत मदीना का लेक्चर देने वाला न्याजी खान किस मुंह से एहतसाब की बात करता है। पहले अखलाकी जुर्रत है तो अपने हेलीकॉप्टर के सैर सपाटे का जवाब दे। और मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं। 27 अरब का एक इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने 27 अरब खाए। शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में गए, आज तक न्याजी ने उसका जवाब नहीं दिया। एक अपना इल्जाम लगाया 10 अरब शहबाज शरीफ ने खाए, आज तक कोर्ट में वकीलें तारीखें लेते हैं, न्याजी खान ने उसका जवाब नहीं दिया। ये झूठा शख्स है, ये झूठा आदमी है और एक एक करके इसका झूठ बेनकाब हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज 8 माह बाद वही पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम आ गई है। तमाम सेक्रेटरीज जो हैं वो शहबाज शरीफ के आ गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इस सूबे की हिफाजत करे, लेकिन ये जरूर कहूंगा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ये आज सेक्रेटरीज जो लगाए हैं ये एतराफ है कि शहबाज शरीफ ने सूबे की खिदमत की है। मैं पाकिस्तानी कौम का बड़ा मशकूर हूं कि आप इस बात का फैसला करेंगे कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, खुदा के फजल और करम से ना एक पाई की करप्शन की है, ना इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर पाएंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग दूर की बात है। न्याजी खान तुम भूल में हो, तुमसे कुछ बन नहीं पा रहा, तुमसे पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल नहीं हो रहे, एक वादा भी तुमसे सच्चा साबित नहीं हुआ। तो कहते हो कि शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ लेके आओ। ऐसे मुल्क नहीं चलते। आज भी मैं कहता हूं कि फाटक जो है ना, फाटक जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहता है, पाकिस्तान की खिलाफ दुश्मन सरगर्म है। इस पाकिस्तानी कौम को जोड़ो, वरना वो वक्त आएगा जब तुम्हारे झूठे वादों का मुहासबा ये पाकिस्तानी कौम करेगी।